देखिए, हम महिला विरोधी नहीं है और हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं, किए हैं और हमने 2023 का जो अमेंडमेंट था उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया, यानी पास किया। लेकिन उसके आज आड़ में दूसरा अमेंडमेंट लाकर उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन का क्लॉज डालकर और ये महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया। ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे कि सिंपल मेजॉरिटी से सदन में कोई भी डिलिमिटेशन का आगे कानून पास हो और वो बदल सके। तो इसीलिए हमने ये कहा कि हमको तो हम पहले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं 2023 बिल के तहत, वो पास भी हो गया। तो 543 जो मेंबर्स हैं उसी में आप कर दो ना। नेक्स्ट सेंसस कंप्लीट होने के बाद या जातिवार गणना कंप्लीट होने के बाद आप फिर नेक्स्ट इलेक्शन में आप पूरा कर सकते हैं। जब देना है वो दे रहे नहीं और तुम्हारे हाथ में था वो सब लोग मिलके करे सो था, उसको आप इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते। लेकिन आपकी मंशा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे को बदलकर एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में लेना और जिसकी सत्ता आएगी वो बदलते रहेगा, तो ये नहीं चाहते। Entire nation witnessed yesterday's debate. We all unanimously passed the 23rd Women Reservation Bill. We are for Women Reservation Bill. Now the government has to act immediately to implement the Women Reservation Bill for 2029 election. Without any delay, they have to act immediately. Their agenda is to link with the Women Reservation, link with the delimitation with the Women Reservation, failed yesterday. Women Reservation never failed. Their agenda to link delimitation with the Women Reservation failed. Why? Because they want to do a delimitation according to their convenience, like Assam and Jammu and Kashmir. They want to cut short the entire constituency according to their convenience. That has been failed. That is basically they actually, because of that shock, now they are telling all the stories. Sir, they are treasury benches. They are saying that they will expose opposition at pan-India level. We are going to demand that this only. Without any delay, start implementation of Women Reservation 2023 bill immediately, without any delay. You start. It is there. It is the government has to do it now. We already passed that bill. Sir, if 50% formula Guarantee was given, where the guarantee was given? What you are telling? You didn't know about the parliamentary procedure. If the guarantee was there, they could have come with an official amendment of the government. We witnessed so many constitutional amendment bills discussion. Whenever government wishes for a thing, they could have come with an amendment, 50% a seat. Why not that? This only that itself is a clear cut. That promise is not going to happen. They don't want to put it in the legislation. Only our demand was put it in the legislation. what is your suggestion to the government way? Government way is to, if they want to implement women reservation, they have to do it immediately. Our demand is to implement women reservation with the existing 543 strength. Sir, in That's all. FIR has been lodged against Mr. Rahul Gandhi having the How many are there? How many are there? This is I think 38 or something. सबसे पहले कौन सा बिल? ये महिलाओं का बिल नहीं था। महिला विधेयक, महिला आरक्षण हम लोगों ने 2023 में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। आज सुना है प्रधानमंत्री तमिलनाडु गए हैं। सबसे पहले तो तमिलनाडु की महिलाओं से माफी मांग के कहना चाहिए कि 3 साल पहले जो पूरे विपक्ष ने मिलकर महिला आरक्षण को पास किया, उसका नोटिफिकेशन तो आपने 16 अप्रैल 2026 में किया है
और रही बात ये जो 16 से विशेष सत्र बुलाया था, ये महिला आरक्षण के लिए नहीं था, ये परिसीमन का पेच डालकर वो महिला आरक्षण को गिरवाना ही चाहते थे। वो महिलाओं को रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहते थे। अगर रिजर्वेशन देना चाह रहे होते तो हम लोग तो 23 में ही कह रहे थे कि भाई जो 543 मेंबर्स हैं उसी में दे दीजिए। एक तो आपने 3 साल वेट कराया और अब अगर लेकर आए, उस वक्त भी आप कह रहे थे कि नहीं, पहले सेंसेक्स होगा, जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और फिर हम लेकर आएंगे। और अभी आनन फानन में 3 साल के बाद आप परिसीमन का बिल लेकर आए और इस तरह से लेके आए कि ना आपने विपक्ष से बात की, ना एक्सपर्ट से बात की, ना स्टेट से बात की। आपने फिर से महिलाओं के साथ परिसीमन का पेच इसलिए लगाया ताकि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो और इसका ठीकरा विपक्ष पे डालने की कोशिश की। लेकिन पूरा देश समझ चुका है कि ये जो आप डबल गेम खेल रहे थे, वो डबल गेम का पूरी महिलाओं ने, आपका जो पोल था ना, वो खुल चुका है। लेकिन महिला विरोधी बीजेपी के, क्या आप लोग महिला विरोधी हैं? जनता आपको माफ नहीं करेगी, खासतौर पर महिलाएं माफ नहीं करेंगी, सड़कों तक हम ये बात ले जाएंगे। देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। पहली बार 2014 के बाद उनका बिल रिजेक्ट हुआ है तो खिसियानी बिल्ली खंबा खोज रही है और वो हमेशा डिक्टेट करने की मानसिकता के साथ सदन में आते रहे हैं। लेकिन ये कह कुछ और रहे हैं, अंदर में यही था कि महिलाओं को आरक्षण ना मिले, ये उनका सोच था, विश था, उसी प्लानिंग से आए थे। अरे इतनी क्या जल्दी थी? अगर आपने 3 साल वेट कर लिया, 2023 में महिला आरक्षण का बिल पास हुआ, 3 साल के बाद 3 साल तक भी आप परिसीमन पे सारी पार्टियों को एक नहीं कर पाए और 3 दिन ट्विटर खेल रहे हैं और लोगों को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हर महिला ये समझ रही है कि ये 3 दिन का सत्र, परिसीमन का पेच और फिर ऊपर से आपने कह दिया था कि भाई जनगणना को नहीं लेंगे। तो जब आपने संशोधन करके सेंसेक्स को हटा दिया तो आप परिसीमन को भी हटा देते ना, आपको कौन मना कर रहा था? आज भी विपक्ष कह रहा है कि हम लोग, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम आज भी खड़े हैं, यही आपको ब्लाइंड चेक देते हैं। जो ब्लाइंड चेक की बात मोदी साहब कह रहे थे, हम लोग कह रहे हैं आपको ब्लाइंड चेक देते हैं। आप 543 जो मेंबर है उसी में 33% महिलाओं को दीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। The dubious, diabolic game of Narendra Modi government has fallen flat on the floor of the parliament. Now, the trick that was adopted by Narendra Modi, using the shield of the women to cheat the entire nation, has been exposed. The country has realized that this government has nothing substantive to give to the women, but only jumla, tricks, and the parliament has exposed. Here starts the downfall of the Modi government, and the way in which they attempted to divide the opposition also didn't succeed. This shows that if the opposition is united, any of these tricks, jumla that is being played by the government can be called off. What is that? Yesterday, everything is over now. Yes, sir. The NDA has said that the protest is going to start, and See, when the placards were ready before the bill was to be defeated, that shows that.